Good morning, students. I hope you will be fine and safe at your home. Dear student, from today onwards, we will discuss about our coming lesson for coming examination. So, today we are going to start new lesson. The name of the lesson is governance. Beta, the meaning of governance is शासन, हुकूमत. Okay? Governance means शासन करना या शासन कैसे चलता है या जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो कैसे फॉलो किए जाते हैं, कौन फॉलो कराता है. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गवर्नेंस. माय डियर स्टूडेंट, as you know, we all have family. In our family members are also there. So in our family there is need to maintain discipline, there is need to make rules and regulation for the family. So these rules and regulation, these system and these things are made by whom? Our parents or our grandparents. What we have to do, what we have not to do, and what is good, what is bad, it is told by, it is explained by our guardian. So when we talk about family, in our surrounding many families are there which is called neighbor. Okay, so when we comes out from our family, our neighborhoods are there, and just for example, in our neighborhood if there is park or any public property is there, so when we go there and when we visit there, there are some rules and regulation in the park, what we have to do and what we have not to do. So these are called rules and regulation. In the park, which you can touch and which things, many things are there that you are not allowed to touch it. So there is rules and regulation. Beta, after family, our neighborhood, and with the help of family, villages are formed by many family, and many villages form district, and many districts form states, and many states form country. So my dear student, from family to country, अगर हम बेटा बात करें फैमिली से लेके कंट्री तक की, तो हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे फैमिली में है, मम्मी पापा हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, कब सोना है, कब जगना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, कब टीवी देखना है, क्या हमको करना है, बड़े से कैसे बात करनी है. तो ये सब बेटा क्या है, रूल्स और रेगुलेशन है. ठीक इसी तरीके से हमारी जो नेबरहुड है, हमारी जो सोसाइटी है,
उसमें भी ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। और ये रूल्स और रेगुलेशन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हमारी सोसाइटी, जो कि बहुत सारी फैमिलीज से मिलकर बनी होती है, और बहुत सारी फैमिलीज से मिल करके क्या बनता है? विलेज और टाउन। और सो फ्रॉम फैमिली टू कंट्री देयर इज नीड टू फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट। वहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की होती है बेटा? ज़रूरत होती है रूल्स रेगुलेशन को जानने की और उसको फॉलो करने की। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नेंस, शासन, how family and how the whole country is governed, by whom, and as in our family our guardians are there to govern the family, to maintain rules and regulation in the family. So in the same way, in every state, in every village, in every country, there is somebody to govern the rules and regulation and maintain discipline. So by this we are going to start this lesson. My dear student, you can see here family, school plus neighborhood. I have written here family, school and neighborhood. बेटा फैमिली, स्कूल और नेबरहुड, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारा स्कूल है, इन सब से मिल करके क्या बनती है बेटा? सोसाइटी. सो आई हैव रिटन हियर सोसाइटी. सो सोसाइटी इज फॉर्म with these means family, school and neighborhood. Our society is made these three things, three field, that is family, school and neighborhood. And by society our country formed. By society our country formed. So this is the formation of country, from family to country. Okay beta, different stages are there by which our country formed, our state formed. Next is, we follow rules at home and in the school. We must also follow the rules of our society and our country. Dear student, in the school there are some rules and regulation, that in which period you can move from the class, in which period, at which time you have to reach in the school, first period will be there of which subject, which time is lunch time and when you have to take your lunch. If you want to go outside, you have to take the permission with teacher. So these all are the rules and regulation that you have to follow in the school. ये सारे रूल्स और रेगुलेशन है बेटा, जिसको कि आप स्कूल में फॉलो करते हैं. सो वी फॉलो रूल्स एट होम. हम घर पे अब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, स्कूल पे स्कूल के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं. वी मस्ट ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ आवर सोसाइटी. समाज में किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ किससे बात नहीं करनी है, सोसाइटी में कैसे रहना है. ओके बेटा, तो ये सारी रूल्स और रेगुलेशन हमको फॉलो करने होते हैं. और कंट्री के भी कुछ, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उसके भी कुछ बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जिसको कि हम फॉलो करते हैं. दिस विल हेल्प एवरीबडी टू लिव इन पीस. बेटा, अगर हमारे लाइफ में रूल्स और रेगुलेशन और डिसिप्लिन नहीं रहेगी तो क्या होगा? पीसफुल इन्वायरमेंट होगा? नहीं, लड़ाई झगड़े का माहौल होगा
और हम लोग पीसफुली नहीं रह पाएंगे, शांतिप्रिय तरीके से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की, और डिसिप्लिन के लिए ज़रूरत होती है रूल्स और रेगुलेशन फॉर्म करने की और साथ साथ उसको फॉलो करने की। ओके बेटा, दिस विल हेल्प एवरीबडी टू लिव इन पीस। नेक्स्ट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर to be followed in a country are known as laws. Beta, here I want to tell you about the laws. What is laws? कानून क्या होता है? Laws मतलब क्या होता है बेटा? कानून। कानून क्या होता है? The rules and regulation that are to be followed, जो नियम और कानून होते हैं जिनको कि हमको फॉलो करना होता है, इन अ कंट्री आर नोन एज लॉज। किसी भी देश में जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको कि हमको फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉज। सो कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज अ कंट्री इज मैनेज्ड और गवर्न्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा, कोई भी कंट्री है, उसको चलाने के लिए, उसको सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो रूल्स और रेगुलेशन है जो कि लॉ के फॉर्म में होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ये हर सिटीजन का, हर नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट इज बेटा, हाउ आवर कंट्री इज गवर्न्ड। अब बात आती है कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे उस पर शासन किया जाता है, किस तरीके से शासित होती है। तो हाउ आवर कंट्री इज गवर्न्ड, हमारी कंट्री को कैसे गवर्न किया जाता है। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट विलेजेस। आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर फैमिली। फैमिली, यू नो, फैमिली इज गवर्न्ड बाय योर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, and after family there is initial body is villages. बेटा, villages जो होते हैं वो ग्राम पंचायत उनको गवर्न करती है। आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्राम पंचायत। तो विलेज, यहाँ पे बस आपको इतना जानना है कि जो विलेज होता है वो ग्राम पंचायत उसको गवर्न करती है, उसको चलाती है। ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन बनाती है उसके हिसाब से। जो 20 स्टेट्स हैं बेटा हमारी कंट्री में, how many states are there in India? 28 states. 28 state in India is governed by state government. बेटा, जो 28 स्टेट हैं, हर राज्य में राज्य की सरकार होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। राज्य की सरकारें, राज्य की सरकारें अपने राज्य के लिए रूल और रेगुलेशन बनाती हैं और उनको फॉलो करवाती हैं। नेक्स्ट है बेटा द यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज हैं बेटा इस समय 9 हैं, और वो किसके द्वारा गवर्न होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्न करती है यूनियन टेरिटरीज को। और जो हमारी लास्ट में आती है वो कंट्री आती है। कंट्री बेटा किसके द्वारा गवर्न होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और होल कंट्री इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So keep these things in mind. You can see here how from villages to country the governing bodies is there which make the law and ask the people to obey the law. So it's all about our today's class. We will meet in our coming class. So thank you. Have a nice day.